नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। नियमों को ताक पर रखकर हुआ सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड का गठन। कोरोना से निपटने के बजाय पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं चेयरमैन। ये बातें कही है सीपीएम के वरिष्ठ नेता अशोक भट्टाचार्य ने। वरिष्ठ सीपीएम नेता तथा नगर निगम बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अशोक भट्टाचार्य ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे राज्य में निगम के प्रशासक बोर्ड को लेकर जो नीति अपनाई गई, सिलीगुड़ी में उसे नहीं माना गया। गुरुवार को पार्टी ऑफिस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भट्टाचार्य ने कहा कि कोरोना हालत से निपटने के लिए नगर निगम प्रशासक बोर्ड गठन की बात कही गई थी, पर सत्ताधारी पार्टी इसके जरिए विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने सिलीगुड़ी नगर निगम प्रशासक बोर्ड का गठन नियमों के ताक पर रखकर किए जाने का आरोप लगाया। अशोक भट्टाचार्य ने कहा कि सिलीगुड़ी शहर में कोरोना हालतों से निपटने के बजाय वर्तमान प्रशासक बोर्ड शहर के सौंदर्यीकरण और विपक्षी पार्टी को तोड़ने में व्यस्त है। दूसरी ओर सीपीएम नेता अशोक भट्टाचार्य के इन आरोपों का नगर निगम प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन गौतम देव ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वे हाल ही में प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन का पदभार संभाले है, थोड़ा वक्त दीजिए, लोग खुद ही उनके कार्यों के बारे में बताएंगे। गौतम देव ने कहा कि केवल कोरोना ही नहीं बल्कि नागरिक परिसेवा बहाल रखना भी उनका काम है। दोनों काम प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। এমনকি শিলিগুড়ি সংবিধানেরও বাইরে না, শিলিগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনেরও বাইরে না। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এটাই বলতাম বারবার করি, যেন শিলিগুড়ির জন্য আলাদা সংবিধান আছে, যেন শিলিগুড়ির জন্য আলাদা পৌর আইন আছে, এবং এইভাবে শিলিগুড়ি অন্য যে কোনো পৌরসভাকে যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা হতো সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে কিন্তু শিলিগুড়িকে দেখা হতো না। শিলিগুড়ির প্রতি সমস্ত পৌরসভাগুলিকে যদি একটা প্রকল্পের অর্থ দেওয়া হয়ে থাকে সেটা শিলিগুড়িকে দেওয়া হতো না। এমনকি যখন আমাদের টার্ম শেষ হয়ে গেল 18ই মে, তার আগে সরকার ঠিক করলো কোভিড জনিত পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্যেই যে আগে যারা বোর্ড অফ কাউন্সিলর্সে বা মেয়র পরিষদে বা চেয়ারম্যান পরিষদে যারা থাকছেন তাদেরকেই প্রশাসক মণ্ডলী হিসাবে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার গ্রহণ করল। তখন আপনারা দেখেছিলেন, আপনাদের মনে আছে, সেই সময়তে কিন্তু কলকাতাতে যারা ছিলেন তাদেরকেই রাখা হলো, অন্যান্য পৌরসভাতে যারা ছিলেন তাদেরকেই রাখা হলো। শিলিগুড়ির ক্ষেত্রে যেটা করা হয়েছিল, মেয়র পরিষদের 3 জন সদস্যের সাথে কয়েকজন বিরোধী দলের নেতাদের যুক্ত করে দিয়ে একটা অর্ডার করা হয়েছিল। তাতে আমি খুব আপত্তি করেছিলাম। আমি বললাম, সারা পশ্চিমবঙ্গে যদি আউটগোয়িং মেয়র পরিষদের সদস্যদের রাখা হয় বা আউটগোয়িং চেয়ারম্যান পরিষদের সদস্যদের রাখা হয়, তাহলে শিলিগুড়িতে আলাদা হবে কেন? তাহলে একই রীতি হওয়া উচিত। তখন আমি বলেছিলাম যে না, এই প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারছি না। এই প্রস্তাব আমি তখনই গ্রহণ করব যদি এই প্রস্তাব অ্যামেন্ড করা হয়। আপনারা সেটা জানেন যে সেই সময়তে গভর্নমেন্ট 15ই মে একটি অর্ডার করেছিল, পরে আমাদের চাপে 16ই মে আরেকটা অ্যামেন্ডেড অর্ডার করেছিল। এখনও যখন শিলিগুড়ি অর্ডারটা বলা হয় তখন বলা হয় 15ই এবং 16ই মে দুটো একসঙ্গে করা হয়। অর্থাৎ আমাদের কথা অনুযায়ী অন্য পৌরসভাতে যেভাবে বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বসানো হয়েছিল ঠিক সেভাবেই বসানো হয়েছিল। আমি ওনার কথার কোনো উত্তর দিতে চাই না। সপ্তাহে 7 দিন কাজ করছি, আর এই 7 দিন কাজ করতে গিয়ে রোববারে কাজ করছি। যে কাজটা আমরা দায়বদ্ধ মানুষের কাছে, কোনো ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তির কাছে দায়বদ্ধ না। আর কোভিড মোকাবেলাটা অগ্রাধিকার, কিন্তু অন্যান্য পুরো পরিষেবাটাকেও সচল রাখতে হবে এবং সেই পুরো পরিষেবা
সচল রাখার জন্যে আমাদের কিছু ফিউচার প্ল্যানিং, ফিউচারিস্টিক প্ল্যানিং আর প্রেজেন্ট যে পুরসভা সেটাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা, তার কার্যক্রম, প্রথা, পদ্ধতি আমাদের নিতে হচ্ছে। আজকে 15 দিনও হয়নি আমরা বোর্ডে এসেছি। এর মধ্যে আমি 3 দিন কলকাতায় গিয়ে সমস্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর মন্ত্রী, ইউডিএমএ সমেত, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ইত্যাদি, হেলথের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির সাথে এবার এ পর্যন্ত 10 বার কথা হয়েছে। অলরেডি আমি মেডিকেল কলেজ, আরও 3টে আর 5টে নার্সিংহোম, শিলিগুড়ি হসপিটালে 2 বার অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানো, এবং আজকেও আমি 5টার সময় মেডিকেল কলেজে আবার যাচ্ছি। আজকে ভিডিও কনফারেন্সিং আছে ইউডিএমের পুরো টিম ইনক্লুডিং মিনিস্টার। এখন আমি তো ওনাকে বলেছি, আপনি বর্ষিয়ান মানুষ, আপনার সাথে আমাদের আলোচনা হবে, আপনার কোনো যদি সাজেশান থাকে, বক্তব্য থাকে, নিশ্চিতভাবেই আমরা সেই বক্তব্যগুলো গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করব এবং কাজ করার চেষ্টা করব। আর যখন নির্বাচন আসবে তখন রাজনীতি করবেন। এই মুহূর্তে তো নির্বাচন নেই, কোভিড মোকাবিলা করা এবং বর্ষার সময় বর্ষাকে মোকাবিলা করা, অন্যান্য কাজ। উনি 13 মাসের গরিব মানুষগুলো বকেয়া রেখে গেছেন, এদের মাসে ভাতা দিতেন 500 টাকা করে। তাদের আমলেই এই সমস্ত লিস্টগুলো হয়েছিল, তৃণমূল বোর্ডে ছিল না। এখন তাদের 1 মাসের ভাতা দিতে গেলে লাগছে 15 লক্ষ টাকা, 13 মাসের বাকি আছে। এগুলো আস্তে আস্তে তো আবার দেওয়া শুরু করা, এগুলো নিয়েও তো চিন্তাভাবনা করতে হচ্ছে, ফান্ড জোগাড় করতে হচ্ছে। সুতরাং অশোকবাবু যে কথাগুলো বলছেন, অনভিপ্রেত সমালোচনা। 15 দিন মাত্র হয়েছে। উনি 20 বছর দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন, 3 বছর চেয়ারম্যান ছিলেন, 6 বছর উনি মেয়র ছিলেন, তার মধ্যে 1 বছর উনি গভর্নমেন্টের এক্সটেনশানে ছিলেন। তো মাত্র 15 দিন, উনি তো আমাকে 15 মাসও চাচ্ছি না, অ্যাটলিস্ট 6 মাস সময় দেওয়া উচিত। गंगा में लाशें तैरने की तस्वीर देख लोगों ने मछली से मुंह फेरा, मछली बाजार में सन्नाटा, चिंता में व्यवसाय। इस मामले को लेकर आज सिलीगुड़ी होलसेल फिश मर्चेंट एसोसिएशन ने एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया। लॉकडाउन के बीच इन दिनों बाजारों में मछलियों की भरमार है, पर खरीदार नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे मछली व्यवसायी काफी चिंतित है। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा नदी में सैकड़ों की संख्या में कोरोना संक्रमित लाशें तैरने की तस्वीर सामने आने के बाद भयभीत होकर बंगाली संप्रदाय के लोग नदी की मछली खाना बंद कर दिए हैं। इसी के मद्देनजर आज सिलीगुड़ी के होलसेल फिश मर्चेंट एसोसिएशन ने एक पत्रकार सम्मेलन कर बताया कि संक्रमण के डर से आम लोगों ने मछली खाना बंद कर दिया है, जिसके कारण उन्हें अपने व्यवसाय में नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बीच पत्रकार सम्मेलन में कहा गया कि सिलीगुड़ी में आने वाले अलग अलग क्षेत्रों में मछली आंध्र प्रदेश से आती है और अन्य क्षेत्रों से आती है। इस बीच मछली का भी परीक्षण किया जा रहा है ताकि लोगों में कोरोना वायरस का भय ना रहे। इस बीच व्यापारियों ने अनुरोध किया कि लॉकडाउन में दुकानें खोलने व बंद करने के लिए आवंटित समय को बढ़ाने की बात भी कही। गौरतलब है कि टीवी स्क्रीन पर गंगा में तैरते शव की तस्वीर देखकर लोग मछली खाने से परहेज कर रहे हैं। इससे मछली कारोबारियों को भारी नुकसान हो रहा है। मछली बाजार खाली पड़ा हुआ है। 80% व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है। दुकानदारों ने बताया कि गंगा में तैरती कोरोना वायरस की लाश को देख आम लोगों ने नदी की मछली से मुंह मोड़ लिया। लोग डर के मारे मछली नहीं खा रहे हैं। मछली नहीं बिकने से उनका धंधा बंद होने वाला है। हालांकि सबसे ज्यादा प्रभावित खुदरा मछली व्यापारी है, जो हर दिन मछली बेचकर 2 पैसे कमाते हैं। चूंकि मछलियों की बिक्री कम हो गई है, इसलिए उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। ये पिछला लॉकडाउन में भी थोड़ा बिजनेस हम लोग का चला था। इस लॉकडाउन में प्रशासन कोई हम लोग को देख नहीं रहा। यहाँ 50,000 से 1 लाख का परिवार चलता है मंडी में। माने हम लोग पैगार हैं, पैगार आड़तदार और स्टाफ मिला के इन लोगों का रोजी रोटी सब बंद हो जा रहा है। और टाइमिंग जो सरकार ने किया हम लोग को सही नहीं है, क्योंकि लोग 7 बजे से 10 बजे क्या आएंगे, ना हम लोग माल बेच पाएंगे तो आएंगे, ना रिटेलर जो खरीद के लिए आ सकेंगे। उनका भी माल बिकेगा नहीं और यहाँ भी माल नहीं बिकेगा। तो सबसे प्रशासन से अनुरोध है, डीएम से अनुरोध करते हैं जो हम लोग को बुला के एक मीटिंग करे
ताकि जो हम लोग को जो असुविधा है यहाँ, ताकि हम लोग बोल सके क्या क्या असुविधा हो रहा है। और दूसरी बात, टाइमिंग थोड़ा हम लोग बढ़ाए, जो 7 बजे से 10 बजे है उसको कम से कम 12 बजे तक किया जाए, ताकि हम लोग को माल बिक्री हो, जो लेने आए वो भी ले आकर मार्केट बिक्री कर सके। कुछ ऐसा देखने में भी आया है, जो रिटेलर जो माल खरीद के ले आते हैं उनका बैग पकड़ा जाता, वो 8 साढ़े 8 बजे रास्ता में रोक देते हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये तो मछली बेचने जा रहा है, हम देख रहे हैं मछली है, इनको रोकना ठीक नहीं। इस डर से भी बहुत लोग नहीं आ रहे हैं, शायद प्रशासन हम लोगों को तंग करेगा, प्रशासन माल बेचने नहीं देगा। ये प्रशासन की जिम्मेवारी है कि लोग मछली खाएँ और बढ़िया से रहे। और दूसरी बात है, जो लोग अभी डिफ्रेंशिएट जो है डिफरेंस है जो गंगा का मछली में और चाहे हम लोग का मछली में, हम लोग को ज़्यादातर यहाँ 70% मछली आंध्र प्रदेश से डीलिंग होता है और वो मछली जो है साइंटिफिक वे में तैयारी होता है। अगर देखा जाए सिलीगुड़ी में अगर कोई भी बिजनेस खुला रहे या ना रहे, लेकिन हम लोग का अगर नहीं खुला रहेगा तो बहुत ही दिक्कत हम लोग का आता है। दूसरी बात है, अभी जो परिस्थिति है, कुछ दिन पहले मीडिया ने या पेपर में अभी एक न्यूज़ आया था कि यूपी बिहार से कोई भी कोविड पेशेंट का जो मर गया है उनका लाश गंगा में फेंक दिया गया। अभी पब्लिक में क्या फैल गया कि ये मछली खाने से ही होता है, मछली वहीं से आता है, मछली खाने से ज़्यादातर ऐसा मैंने अभी फैल गया। लेकिन ये एक दुर्भाग्य का बात है कि अभी जो सिचुएशन है ऐसा कोई ये नहीं है। हम लोग का ज़्यादातर मछली जो भी आता है आपको आंध्र प्रदेश से आता है, गुजरात से आता है, साउथ से कुछ बहुत सारे सेंटर है वहाँ से आता है, लोकल मछली आता है, MP से आता है। लेकिन ऐसा हम लोग का यहाँ पर गंगा का मछली तो भी कम ही आता ही नहीं है एक्चुअली। लेकिन उसमें हम लोग का कोई ताल्लुक नहीं है। फिर भी अगर जनगण जो है इनका तो ऊपर हम लोग जा नहीं सकता, लेकिन इसमें कोई हम लोग का मैंने बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग का एक्चुअली मछली यहाँ पर बिकता नहीं है। अभी हफ्ता में हम लोग 7 दिन ही खुला रखता है। अभी जो गवर्नमेंट का रूल्स है 10 बजे तक ही खुला रखता है, फिर भी हम लोग का बिकता नहीं है। और ज़्यादातर मुश्किल होता है, जो भी पाइकर यहाँ से मछली लेके जाते हैं उन लोग को क्या होता है, उन लोग 10 बजे का अंदर बेच नहीं पाता और भी दिक्कत हो जाता है उन लोग को। तो फिर भी अभी तो सरकार का जो आइन है वो तो मानना ही पड़ेगा। हम लोग उसके मैंने हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं मानने का। थोड़ा बहुत मारपीट इधर उधर हो जाता कभी कभी, लेकिन ज़्यादा दिन हम लोग पौने 10 बजे का अंदर हम लोग ख़त्म कर देते हैं। तो अभी जो सिचुएशन है, हम लोग एक डिसीजन लिया एसोसिएशन में बैठ के कुछ दिन पहले, ये ऐसा अगर चलते रहेगा तो हम लोग को तो बंद करने पड़ेगा। लेकिन हम लोग सिलीगुड़ी वासी को देखते हुए हम लोग सोच रहा है कि अगला हफ्ता से हम लोग हफ्ते में 3 दिन खुला रखेंगे। सिक्किम में लॉकडाउन के मामलों में उछाल, 24 घंटों में सामने आए 249 नए मामले, 3 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। देश का हर राज्य इससे अछूता नहीं है। पहाड़ी राज्य सिक्किम में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। हर दिन संक्रमितों की संख्या में घट बढ़ की स्थिति देखी जा रही है। इस बीच 24 घंटों में राज्य में 249 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए, वहीं 3 लोगों ने अपना दम तोड़ा। बढ़ती संक्रमण के मद्देनजर सरकार के द्वारा घोषित 1 हफ्ते का लॉकडाउन का आज चौथा दिन था। सरकार के द्वारा बताया गया कि जरूरी परिसेवाओं और टीकाकरण अभियान जारी रहेगा, बाकी सब कुछ लॉक रहेगा। इस बीच 24 घंटों में राज्य के पूर्व जिले में 121 मामले, दक्षिण जिले में 75 मामले, पश्चिम जिले से 40 मामले और उत्तर जिले से 13 नए मामले रिपोर्ट किए गए। इस बीच राज्य में एक्टिव केस की संख्या 3050 रही है। डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या 8655 रही है। राज्य में कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 217 और राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 12,200। एसडीओ ने लॉकडाउन का लिया जायजा। लॉकडाउन के 5वें दिन सिलीगुड़ी की एसडीओ ने गुरुवार को सिलीगुड़ी शहर की सड़कों पर उतरकर लॉकडाउन के वास्तविक हालातों का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ लॉकडाउन को सफल करने व कोरोना वायरस से निपटने के लिए पुलिस की ओर से की जा रही इंतजामों की जानकारी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार।
अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911-546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भूटान से लौटे 38 प्रवासी श्रमिकों को कोरोना टेस्ट के बाद घर भेजा गया। प्रशासन की ओर से पड़ोसी देश भूटान से जयगांव लौटे प्रवासी श्रमिकों की कोरोना जांच करने के बाद उनके घर भेज दिया गया। गुरुवार सुबह भूटान में काम करने वाले 38 प्रवासी श्रमिक अलीपुरद्वार जिले के जयगांव पहुंचे। कालचिनी प्रखंड प्रशासन और जयगांव थाने की पहल पर जयगांव में सभी का कोरोना टेस्ट किया गया। इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जिलों के रहने वाले इन प्रवासी श्रमिकों को उनके घर भेज दिया गया।
जानकारी के अनुसार 3 महीने पहले ये सभी श्रमिक का काम करने भूटान गए थे। ভিডিও সাহেব বিশদভাবে বললেন, আমরা ভিডিও সাহেব এবং আমরা জয়েন্টলি দেখছি এবং তাদের খাবার দাবারের ব্যবস্থা যাতে কোনো সমস্যা না থাকে এবং তাদের প্রপার ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ভিডিও সাহেব তো এই বিষয়ে খুবই অ্যাক্টিভ আছে। তো আমরা পুলিশ এবং সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একসাথেই আছি। এরকম ঘটনা আসলে আমরা জয়েন্ট হ্যান্ড হিসাবে কাজ করবো এবং এরা আমাদের নাগরিক আছে, এদের বাড়ি পৌঁছানোর দায়িত্বটাও আমাদের। তার জন্য আমরা উপরে কথা বলছি, সুষ্ঠুভাবে বাড়ি পৌঁছে যেতে পারে এই ব্যবস্থা আমরা। रायगंज के एक गैर सरकारी संस्था के द्वारा ग्रामीण अंचलों में चलाया गया सैनिटाइजेशन कार्यक्रम वर्तमान में पूरे देश में शहर के साथ ग्रामीण अंचलों में भी कोविड-19 संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को सचेत रहते हुए जागरूकता अभियान शुरू करने को कहा है। साथ ही ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को भी पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। उत्तर दिनाजपुर जिले के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में भी कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए रायगंज की एक गैर सरकारी संस्था मुक्ति कांडारी की ओर से ग्रामीण अंचलों में जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके साथ ही लोगों को मास्क वितरित किया गया और कहा गया कि वे लोग सामाजिक दूरी का अवश्य पालन करें। गुरुवार को रायगंज ब्लॉक के 7 नंबर सीतग्राम ग्राम पंचायत के कृष्णमुंडी, चापड़ा, घाघरा, पानीशाला इलाके में सैनिटाइजेशन कार्यक्रम चलाया गया। এইখানে পানিশালার একদল যুবক ভাইরা রায়গঞ্জ মুক্তির কান্ডারির সাথে যুক্ত হয়ে গ্রামে গ্রামে সচেতনতার একটা বার্তা দিতে চাইছে যে করোনা মানেই আতঙ্ক নয়, করোনা মানেই গোপন করে রাখার কোনো রোগ নয়। করোনা হলে সঠিক চিকিৎসা এবং করোনার যে কোনো উপসর্গ হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। শ্বাসকষ্ট বা অক্সিজেনের অভাব বোধ করলে সাথে সাথে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য দ্রুত পৌঁছে যেতে হবে এবং তবেই এই করোনাকে আমরা জয় করে এগিয়ে আসতে পারবো। এবং এই করোনা জয় করার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে বিধিনিষেধ লাগু করা হয়েছে, লকডাউন তৈরি করা হয়েছে, সেগুলোকে মেনে আমাদের চলাচল করতে হবে। মাস্ক পরতে হবে, স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে, বারবার সাবান জলে হাত ধুতে হবে এবং দূরত্ব বিধিটা বজায় রেখে চলাচল করতে হবে। অযথা ভিড় জমায়েত করব না। গ্রামাঞ্চলে আমরা অনেকেই করোনা উপসর্গ দেখা দিলে লুকিয়ে রাখি, মনে করি যে করোনা মানেই একটা ভয়ঙ্কর ছোঁয়াচে রোগ। তার জন্য গ্রামের থেকে অনেকটা দূরে কোনো ফাঁকা জায়গায় তাকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু এর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সেই লক্ষ্যেই আমরা গ্রামে গ্রামে মানুষের মধ্যে এই সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিচ্ছি এবং আজকে এই গ্রামাঞ্চলকে স্যানিটাইজ করার একটা উদ্যোগ নিয়েছে এই গ্রামের একদল যুবক ভাইরা। তাদেরকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, কুর্নিশ জানাই যে তারা অন্তত সচেতনতার এই বার্তাটা উত্তর দিনাজপুরে প্রথম পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছে। তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ রায়গঞ্জ মুক্তির কান্ডারি এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকেও আমরা অভিনন্দন জানাই এই গ্রামের এই যুব সম্প্রদায়কে, যারা আগামী দিনে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে এই গ্রামবাসীর জন্য একত্রিত হয়ে কাজ করার জন্য একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। बंधन बैंक की 2 नई शाखाएं खुली। बैंक अधिकारियों ने कहा लोगों की सुविधा के लिए उठाया गया कदम। कोरोना महामारी के बीच लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंधन बैंक ने गुरुवार को अपनी नई शाखाओं का उद्घाटन किया। जलपाईगुड़ी के पहाड़पुर के बाजरापारा और कालियागंज में बंधन बैंक की 2 नई शाखाओं का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन अवसर पर बैंक के अधिकारियों ने कहा कि बैंक की ओर से लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पहल की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि काफी आसानी से कर्ज मिलने से बैंक के ग्राहक काफी खुश है। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले दिनों में बैंक की ओर से लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दिए जाने की भी जानकारी दी। আমরা ইমিডিয়েট একটু পরেই হয়তো আমরা আরেকটা ব্রাঞ্চ ওপেন করতে যাবো, সেটা কালিয়াগঞ্জ বা সেই কালিয়াগঞ্জ। অ্যাকচুয়ালি মানুষের পরিষেবাটা আরও সুন্দর দেওয়ার জন্য, আরও কাছে থেকে দেওয়ার জন্যই আমাদের এইটা পরিষেবাটা আমরা করছি। করোনা আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও এই বন্ধন ব্যাংক যে কিছু কিছু ডিসিশন নিয়েছে যে মানুষের কাছে গিয়ে পরিষেবা করতে হবে, যেমন দিচ্ছিল তেমনি পাশাপাশি এখন ধরুন যে একটা পাশে যদি একটা কাছাকাছি মানুষের কাছাকাছি যদি একটা ব্রাঞ্চ ওপেন হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে তারা কাছে থেকে এসে তারা সহজেই এসে তাদের সার্ভিসটা নিতে পারে। এই জন্যই আমাদের ব্রাঞ্চটি ওপেন করা। ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে প্রায় 4211টা ইউনিট আছে বন্ধন ব্যাংকে এবং সেগুলো দিয়ে প্রত্যেকটা রুরাল এরিয়াতে কাস্টমারদের সার্ভিস দিচ্ছে। এছাড়াও আমাদের আগামী দিনে অনেক পরিকল্পনা আছে যে আমরা আরও অনেক ব্রাঞ্চ বা অনেক ইউনিট ওপেন করবো, যাতে প্রত্যেকটা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষের কাছে আমরা এই পরিষেবাটা পৌঁছে। খুব সুবিধা হলো, কাছাকাছি হয়ে গেল পাহাড়পুর, খুব সুবিধা পেলাম এখানে হওয়া। খুব আনন্দিত, এর জন্য খুব ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ বন্ধন ব্যাংককে। गरीबों की मदद कर रहा है कोरोना प्रतिरोध बल। तृणमूल युवा कांग्रेस की जटेश्वर शाखा द्वारा गठित कोरोना प्रतिरोध बल की ओर से कोरोना पीड़ित व असहाय लोगों की मदद की जा रही है। संगठन के
सदस्यों ने गुरुवार को फालाकट्टा प्रखंड के जटेश्वर क्षेत्र में 10 जरूरतमंद परिवारों को विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियां वितरित की। कोरोना प्रतिरोध बल के सदस्य निझर दत्ता ने कहा कि कोरोना महामारी काल में संगठन की ओर से गरीब परिवारों की मदद की पहल की जाए। করোনা যোদ্ধা বাহিনী আপনারা জানেন প্রথম করোনাতেও আমরা এইভাবে মানুষের পাশে ছিলাম, সর্বোপরি আজকেও। কারণ করোনা হওয়ার থেকে বড় জিনিস করোনা যে লকডাউন, মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ছে, সেখানে অনেক লোক আছে দিন আনে দিন খায়, তাদের মনে করেন রুটি রুজিতে একটা টান পড়ে গেছে। যার জন্য আমরা এই এলাকার করোনা সদস্য বাহিনী গঠন করেছি, সেটা আপনাদের মাধ্যমে হয়তো ছড়িয়ে গেছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা মানুষের কাছে আরও পাশে, এবং আপনাদের কাছে অনুরোধ, সেরকম যদি কোনো দুস্থ পরিবার থাকে আমাদের একটু খবর দেবেন। আমাদের যৎসামান্য শক্তিতে আমরা প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাব। কি নাম দাদা আপনার? আমার নাম নির্জর দত্ত, করোনা বাহিনীর একজন সদস্য। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।